بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسمٹ ٹیلز چینل کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر قریش کی نسل سے تھے جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے، وہ نوجوان تھے، ان کی عمر 27 ورष کی تھی۔ غصہ بھی انہیں تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہادر بھی تھے اور نڈر بھی۔ جب اور جس سے الجھ جاتے تھے وہی دب جائے تو جائے، پر آپ نہ دبتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر جب میان سے تلوار نکال لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے ہی میان میں واپس جائے گی۔ اس خیال سے لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے جھولتے جھامتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار کہاں لیے جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے؟ اس نے قوم میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے آؤں گا، عمر نے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے میں کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ سعد نے کہا، پھر آگے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ان دونوں کا خاتمہ کراؤں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرا دیں۔ عمر کے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے قدم اٹھا کر وہ ارقم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پورا نہ سن سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پر کھڑی نظر آئیں۔ بھائی جان، آپ ہیں، آ جائیے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ وہ عمر کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر سہم گئے۔ ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عمر نے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر اس طرح کھڑے تھے گویا حضرت سعید رضی اللہ عنہ پر جھپیٹنے والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ عمر بڑے جوشیلے ہیں، ضرور سعید رضی اللہ عنہ کو مارے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی بادی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے،
हम जो पढ़ रहे थे आपको सुना देंगे। उमर गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिनते खत्ताब को झटका देकर अलग करा दिया और हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु का दामन पकड़कर उन्हें झटक देते हुए कहा, ओ गुमराह, तू क्या पढ़ रहा था? हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु डरी हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे, कुछ जवाब न दिया। उमर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को नीचे गिरा दिया, मारना शुरू किया। मारते जाते थे और कहते जाते थे कि कमबख्त, तुम मुसलमान हो गए हो, अब मुसलमान होने का मजा चखो, इतना मारूंगा कि तुम मर जाओगे। हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई जवाब न दिया, खामोश पड़े पीटते रहे। उमर ने कहा, जलील कमीने, तुमने इस्लाम कबूल करके हमारे खानदान को बट्टा लगा दिया है, बोल क्या तू इस्लाम छोड़ेगा? हजरत सईद ने कहा, नहीं नहीं, मरते दम तक इस्लाम का दामन हाथ से न छोड़ूंगा। यह जवाब सुनकर उमर पहले से भी ज्यादा गजबनाक होकर बिफरे, आपे से बाहर हो गए। उन्होंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। अब हजरत फातिमा बिनते खत्ताब से सब्र न हो सका। उन्होंने उमर का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाईजान बस करो, आखिर कब तक मारोगे? उमर तो गुस्से में भरे ही थे। आपने जोर से एक घूंसा मारा। फातिमा बिनते खत्ताब का सर दीवार से टकरा गया, सर फटा और खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोश में भरकर कहा, हाँ ऐ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन गए हैं, जो तुमसे हो सके करो। उमर ने अपनी बहन फातिमा का खून में सना चेहरा देखा तो आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपने हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ दिया। मुझे वह कलाम लाकर दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी अभी पढ़ रहे थे। उमर ने ये बात संजीदगी से कही थी। हजरत फातिमा ने चेहरे से ही भाप लिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, है भाई, हम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसको वही छू सकते हैं जो पाक हैं। अगर आप नहा कर आए हैं तो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं। इसमें शक नहीं है कि यह खुदा का हुक्म है। इसके कहने का मकसद ये था कि उमर नहा लें ताकि उन्हें जो थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया है वह भी जाता रहे। उमर को कुरान मजीद सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं गुस्ल करके आता हूँ। यह कहते ही वह बाहर चले गए। एक अरब मकान के अंदर छिपे हुए थे। ये खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु थे। कुरान मजीद की तालीम देने के लिए हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते उमर को देखकर छिप गए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को खिताब करके कहा, फातिमा, तुमने ये क्या किया? वजद किया कि अपने भाई को कुरानी आयतों को दिखाने का वादा कर लिया। हजरत फातिमा ने कहा, इत्मीनान रखो खब्बाब, मुझे यकीन है कि कलामे इलाही उमर के दिल पर असर किए बगैर न रहेगा। खब्बाब ने कहा, खुदा ऐसा ही करे। अब हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि उमर मुसलमान हो जाएंगे। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। उमर के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमानों को बड़ी ताकत मिलेगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के जख्म से खून अब तक जारी था। हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपना सर और मुंह धो डालो। फातिमा ने मुंह हाथ धोया, जख्म पर पट्टी बांधी। इस बीच उमर नहा धोकर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अब दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। उमर को आते हुए देखकर खब्बाब फिर घर के अंदर जा छिपे। हजरत फातिमा अंदर से कुछ पन्ने लाई, इन पर सूरह हदीद लिखी हुई थी। उमर ने हजरत फातिमा से वे पन्ने लेकर खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, जमीन व आसमान के रहने वाले खुदा की तस्बीह करते हैं और खुदा ही गालिब और हिकमत वाला है। वह आसमानों और जमीन का बादशाह है। वही जिंदा करता है, मारता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। उमर ने अभी इतना ही पढ़ा था कि बोल उठे,
वाह क्या मीठा कलाम है, ऐसा कलाम आज तक न मैंने देखा न सुना, इसका असर सीधे दिल पर होता है। आपने आगे पढ़ना शुरू किया, ज्यों-ज्यों आप पढ़ते जाते थे दिल मुतासिर होता चला गया। जब आपने ये आयत पढ़ी, खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और खर्च करो उस चीज को जिसे तुम्हें पहले लोगों का जानशीन करके दिया गया है, बस जो लोग ईमान लाएं उनके लिए बड़ा सवाब है। इन आयतों का उमर पर बड़ा असर पड़ा और वह बेइख्तियार पुकार उठे, ये कलाम बहुत उम्दा है, मैं ईमान लाया इस पर। उमर की इस तब्दीली से हजरत सईद फातिमा दोनों बहुत खुश हुए। हजरत खब्बाब भी खुश होकर बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही उनको सलाम किया। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आपके बहनोई और बहन को कुरान मजीद की तालीम देने आया करता था, आपको देखकर छिप गया था। ए खत्ताब के बेटे, मुबारक हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक में मकबूल हुई। कैसी दुआ? हजरत उमर ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल दुआ फरमाई थी, इलाही या उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को। सो मालूम होता है कि तुम्हारे हक में दुआ मकबूल हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं वहीं चलकर मुसलमान होऊंगा। चुनांचे हजरत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें साथ लेकर रवाना हुए। हजरत उमर ने तलवार हाथ में ले ली। उधर हजरत साद बिन अबी अकास रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर होकर हजरत उमर के आने की कैफियत बयान कर चुके थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लोगों ने दरवाजे से झांक कर देखा, हजरत उमर नंगी तलवार लिए खड़े नजर आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरवाजा खोल दो। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने भी फरमाया, बेशक दरवाजा खोल दो, अगर उमर नेक इरादे से आया है तो खैर है, वरना इसी तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे सहाबा किराम ने करीब जाकर दरवाजा खोला। हजरत उमर मकान के अंदर दाखिल हुए। जब वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप उठ खड़े हुए। आपके साथ तमाम सहाबी भी उठ खड़े हुए। जलाल भरी आवाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? इस रौबदार आवाज ने हजरत उमर को कपकपा दिया। उन्होंने कहा, ए खुदा के मुहतरम रसूल, मैं मुसलमान होने आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में पूरी आवाज से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। दारे अकरम और मोहल्ले की तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ गए। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चारों ओर बैठ गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमा पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमा पढ़ाकर हजरत उमर को मुसलमान किया। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने के बाद कहा, ऐ खुदा के हबीब, मैं चाहता हूँ कि आज खाना काबा में चलकर नमाज अदा कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो चलो। सब उठ खड़े हुए। दारे अरकम से बाहर आए और खाना काबा की तरफ रवाना हुए। हजरत उमर सबसे आगे नंगी तलवार लिए चल रहे थे। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उल्टे हाथ पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बराबर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चल रहे थे। बाकी सहाबा पीछे कुफ्फारे मक्का ने जब इस शान से मुसलमानों को आते देखा तो उनको बड़ी हैरत हुई। रास्ते में अबू जहल मिला। उसे देखते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू जहल, खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल मानता हूँ। अबू जहल को कुछ कहने का हौसला न हुआ और मुसलमानों ने खाना काबा में नमाज पढ़ी। कुफ्फारे मक्का एक और खड़े रहे। ये पहली नमाज थी जो मुसलमानों ने एलानिया खाना काबा में पढ़ी। नमाज पढ़कर लोग वापस आ गए। हजरत उमर की वजह से किसी काफिर को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। ये वाक़या ज़िलहिज्जा सन 6 नबवी का है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के दीनी वाक़यात मिलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट भी करना न भूलें और साथ ही में अस्मत टेल्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी दीनी वाक़यात से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल
مل جائے۔ السلام علیکم۔